Hello everyone, welcome to my channel. Today we are starting with the first chapter of Class 8 German Lektion 1 Module 5. Stefan Weigelt-Stier. Module 5 Lektion 1 Stefan Weigelt-Stier. It's very much understood. The title of the chapter is very much understood. Weigelt-Stier is something that we have been doing still since 5th 6th. I'm not talking about the what grammar topic is related to this. However, we have done the meaning of this. This is used to ask someone's well-being. How are you? So Stefan, how are you? So before beginning with any grammar topic, we should do the word charts or vocabulary of the chapter, means vocabulary of the chapter, so that when we are doing grammar we are clear with it. Let's start with the word charts or vocabulary. What Shats. It is also known as vocabulary. So in this chapter mainly the vocabulary is related to body parts. Body parts are called Kuperteile. Body parts are called Kuperteile. Kuperteile means body parts. Kuper means body and Teile means part. Kuper is body and Teile means parts. Teile means parts and tile means one part. Tile is singular, Teile is plural. So body parts, so Kuperteile. Now of course we will divide this into der, die, das and the plural, right? And then we'll learn the articles. So let's start with that. Die, das, right? So first part, of course, first Kuperteile we have done. So what is the article of Kuper? Kuper means body. So article of Kuper is there. Article of Kopf, which is head. Kopf means head, is there. Mouth, which means Mund, is there. Arm, very much understood, is there. Hals means throat, or you can say neck, is also there. Their hals. Finger, very much understood, is also there. Bauch is also there. Bauch means stomach. One synonym is also there, Megan. So sometimes Megan is used, sometimes Bauch is used. So both are correct, Bauch and Megan. Then is Zahn. There's Zahn. Zahn means teeth. Then we have Ellbogen, yeah, Ellenbogen. You can write anything, Ellbogen also, Ellenbogen also. Both are correct. So this, it can be Ellbogen also, Ellenbogen also. It means elbow, very much understood. Then we have Rücken. Rücken means your back of the body. And last is Fuss. Fuss is very much understood. Fuss means foot. So you must have noticed that ज़्यादातर बॉडी पार्ट्स के आर्टिकल तो देयर ही होते हैं. सो इसको याद करने की ट्रिक होती है जो मैं आपको बताऊंगा. अब दी के कौन से होते हैं? दी के दो ही होते हैं. दी सिंगुलर के दो ही होते हैं. एक होता है नाज़ा और एक होता है हुंड. ठीक है. और दास के होते हैं चार बस. नाज़ा मीन्स नोज, ऑफ कोर्स. तो दी द नोज and the hund and the sorry I've written wrong. This is not hund, this is hand. Sorry hand means English वाला वही सेम चीज़ है. Then das auga means ears. Auga means eyes. एक आई, single eye is auga.
Oher. Oher is ear. Single ear. Das Oher, the ear. Then das Bein. Bein is leg. Bein is leg. And last but not the least, das knee. Knee is of course knee English वाला. तो वही है. तो आप अगर अब इसको लर्न कैसे करेंगे, क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स हैं, देयर आर मेनी वर्ड्स. देर आर इवन मोर बॉडी पार्ट्स बट दिस इज़ इन योर सिलेबस. इससे ज़्यादा बॉडी पार्ट्स होते हैं. डाउमन, शेंकल, क्यूनिशल, स्टर्न, आउगन, ब्रावर, वैंगर, हार, केन, गेसिस्ट. Gesichtscht is something that you should know. Gesicht. Das Gesicht. Gesicht means face. Face, चेहरा. So how you will learn? You have to learn for दी and das. So if you have learned for दी and das में 4 हैं और दी में 2 हैं. अगर ये लर्न कर लिए तो आपको ऑफकोर्स पता है जो इन दोनों में से नहीं होगा तो वो देर ही होगा. अगर दी और दास याद लर्न कर लिए तो इनके तो लर्न हो गए. तो ऑफकोर्स अगर इन दोनों में से कोई वर्ड नहीं होता है तो ऑफकोर्स देर में जाएगा. तो ऑटोमेटिकली खाली दी और दस का लर्न करने से देर लर्न हो जाएगा कि देर में इतने ही हैं. दी और दस के अलावा बाकी सारे देर में जाएंगे. मीनिंग्स आपको लर्न करनी है. मीनिंग्स भी डिफ़िकल्ट नहीं है लर्न करना. कुछ ही वर्ड्स हैं, द ओनली सम वर्ड्स जिसमें थोड़ा सा अलग हो सकता है. लाइक हाल्स हो गया, बाउक हो गया, मेगन हो गया, एलन बोगन इज क्लियर, यूकन हो गया, नाजा हो सकता है, आउगा, ओहर, बाइन. what just happened? और बाइन. ये कुछ नए वर्ड्स हैं, इसकी मीनिंग आपको लर्न करनी पड़ेगी. बाकी की तो क्लियर है. बड़े इजी. जर्मन में थोड़ा सा एडवांटेज होता है कि काफ़ी वर्ड सिमिलर होते हैं तो इजी रहता है. अब हम चलते हैं प्लूरल, दी प्लूराल पे, कि कुछ वर्ड्स के प्लूरल भी तो होंगे. तो दी प्लूराल पे चलते. इसको मैं सेपरेटली लिख रहा हूँ. इट इज़ इम्पॉर्टेंट. इसका क्वेश्चन आ सकता है कि प्लूरल में लिखो. सो आर्म, arm is armor in plural. Very easy changes. It's not something कि बहुत कुछ चेंज हो रहा है. बस सेम ही, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होता. फिंगर तो एकदम एज इट इज़ सेम ही रहता है. जो ई आर होते हैं ना जनरली, जिनके एंडिंग में ई आर होता है, उनका प्लूरल भी सेम ही रहता है. जान का हो जाता है जेना विद अ उमलाउट. फुस का हो जाता है फ्यूसर. हैंड का हो जाता है हैंडर उमलाउट के साथ. आउग का हो जाता है, बस एन ऐड हो जाता है, आउगन. ओहर का हो जाता है ओहरन, ई एन ऐड हो जाता है. ओहरन. एंड बाइन का हो जाता है, बाइन मतलब लेग, दास बाइन का हो जाता है बाइना. सो दिस इज योर प्लूरल. अब इसमें चेंजेस देखते हैं. आर्म का आर्मर, तो ई का एडिशन. फिंगर एज इट इज़ सेम रहता है. ई आर एंडिंग है तो जनरली ई आर एंडिंग वाले वर्ब सेम रहते हैं. जान का जेना. जान का जेना मीन्स टीथ. तो जान का जेना, उमलाउट भी ऐड हुआ और ये भी हुआ. फुस का फ्युस्सा, उमलाउट ऐड हो गया, ई ऐड हो गया. हैंड का हैंडो. आउग का आउगन, एन ऐड हुआ. ओहर का ओहरन, ई एन ऐड हुआ. बाइन का बाइना, ई ऐड हुआ. बड़ा इजी है, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है लर्न करना. 2-3 बार करोगे तो आपको कुछ पैटर्न्स ऑब्जर्व होंगे कि कुछ पैटर्न्स हैं जिससे प्लूरल बन रहा है. तो वो पैटर्न एक बार समझ गए तो फिर हो जाएगा, या तो डायरेक्टली लर्न कर लो. तो पैटर्न से समझ के करना इज़ बेटर. अब मैं कुछ और आपको एक्स्ट्रा चीज़ें बताना चाहता हूँ. अब जैसे हम कभी कभी बोलते हैं कि यू विल हैव अ टाइट स्लैप, राइट. टाइट स्लैप हम बोलते हैं कभी कभी कि तुम्हें चाटा लगाऊंगा, ये लगाऊंगा. तो उसको जर्मन में क्या बोलते हैं, कि इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहा हूँ. तो उसको जर्मन में बोलते हैं ओहर फाइगर. ओहर फाइगर, ठीक है. के ऊपर मैंने बताया ही दिया था बॉडी होती है
देयर के ऊपर होता है मीन्स बॉडी, एंड टाइल मीन्स पार्ट्स, प्लूरल, प्लूरल पार्ट्स, प्लूरल। सिंगुलर कब हो जाता? जब टाइल होता है। टाइल, अगर टाइल होता तो सिंगुलर होता, पर क्योंकि टाइलर है तो प्लूरल है। ऑफकोर्स आपको पता होगा ई एंडिंग जब भी लगती है तो वो दी आर्टिकल होता है, प्लूरल, दी आर्टिकल इज यूज फॉर प्लूरल ना। तो ये चीज़ है। तो ये हमारी थी मेन वोकैबुलरी ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। तो मेन ये चीज़ थी। अब ये समझने के बाद, अंडरस्टैंड करने के बाद हम ग्रामर से स्टार्ट करेंगे। एक ओवरव्यू दे देता हूँ। ग्रामर, ग्रामर से स्टार्ट करेंगे। ग्रामेटिक कहते हैं जर्मन में। तो ग्रामर में इसमें जब सबसे मेन चीज़ इस चैप्टर में है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ डाटिव केस एंड डाटिव वर्ब्स। मतलब डाटिव केस के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो सब कुछ, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। इसमें बस मैं बता रहा हूँ कि ग्रामर में क्या है, ग्रामेटिक में क्या है, डाटिव केस। मेन चीज़ ये डाटिव केस है। ये अभी तक नहीं लाया गया था। 6th में नॉमिनेटिव किया, 7th में एक्यूजेटिव किया, 8th में डाटिव और 9th में गेनेटिव। 4 ही केसेस होते हैं, वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो 4 केसेस हैं। तो ये तीसरा, थर्ड केस है जर्मन का जो हमें करना है इस चैप्टर में। और कोई एज सच मेन टॉपिक तो नहीं है, इसके सब टॉपिक्स हैं डाटिव के। और वेव फ्रागा है, वो भी थोड़ा डाटिव से रिलेटेड है। वेव फ्रागा, डब्ल्यू क्वेश्चंस, वो भी डाटिव से रिलेटेड ही टॉपिक है। और हाँ, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अलग से लिखते हैं। इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, जर्मन में इम्पराटिव, इम्पराटिव जेट्स, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इंग्लिश में होता है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। तो ये सारे टॉपिक्स इस चैप्टर में कवर्ड है, विच वी विल बी डूइंग इन द कंसेक्यूटिव वीडियोस।